And as Pakistan opens its doors for the Sikh pilgrims from India, back home it is unable to protect its Christian minorities. Karachi, Lahore and now Islamabad, people are forming a human shield to protect this church after the devastating bomb in Peshawar. It has sent a shocking wave to the whole country, and lots of fear has been created. Tears, hugs and impromptu prayers as people return to devastated homes in Jallianwala after Wednesday's mob attack. Allegations that two Christian men had reportedly desecrated pages of the Quran, the Muslims' holy book, triggered the rampage involving hundreds of Muslims. Let me start with this report. It's from last month. This is when Pakistan's mission at the United Nations received hundreds of letters seeking concrete steps to protect the Christian community in Pakistan. But we, as Christians, are people of faith, and we believe that our God has always been with us. You see, these letters highlighted the systematic persecution of the Christians in Pakistan, the unjust punishments that they are subjected to, citing blasphemy, the forced marriages of young Christian girls to older Muslim men, the usurping of land and belongings of Christians, and the forced conversions in various parts of Pakistan. Muslims, Hindus, Sikhs and Christians have turned out to form this human shield to protect this church. And they're not stopping here. Next week they're travelling to Peshawar to protect the church where the bombing took place. Let's just have a look at some recent developments first. In February this year, 2 Christian farmers were killed in Pakistan. One of them was beaten to death by his Muslim landowner. In January, a guava farmer was gunned down. Why? For resisting the stealing of fruits from his orchard. And he too was a Christian. He was killed by 3 Muslim youths. In fact, reports say the accused are still walking free. And if you think that is bad, then have a look at this report. A few weeks back, a 15-year-old Christian girl was kidnapped. She was abducted by a 60-year-old Muslim who later forcibly married her and converted her to Islam. The girl's family saying that they went to the police, but the cops refused to accept the complaint. And it doesn't even end there. Last year, a Christian priest was shot dead in Peshawar. What exactly was his crime? No one knows. The Peshawar police has linked the attack to terrorist elements. You see, even schools run by Christians are under attack in Pakistan. Last year, a school in Pakistan's Sheikhupura city was ransacked by a group of goons. Reports say at least 14 armed men raided the school, tortured the staff, and damaged their vehicles. Why? Because this school was providing free education to Christian students. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज क्रिसमस दिवस पर सभी भारत देशियों को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज क्रिसमस के इस दिवस पर हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान में किस प्रकार से ईसाइयों के हालात काफी खराब हैं। जी हाँ, बचे कुछ ईसाई जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनकी जिंदगी अब नरक से कम नहीं है। दिन ब दिन उन्हें नरक यातना होती है। उन्हें उनकी माइनॉरिटी होने पर और ईसाई होने पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान जब से बना है तब से ईसाइयों की संख्या पाकिस्तान में कम होती जा रही है। इसके कई सारी वजह है। कुछ लोग जो थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं वो पाकिस्तान को छोड़ देते हैं, और जो गरीब लोग जो देश नहीं छोड़ सकते उन्हें तो धर्म परिवर्तन किया जाता है या फिर उनकी हत्या हो जाती है। आपने अभी भी क्लिप में देखा कि किस प्रकार से पिछले 1 सालों में पाकिस्तान में रह रहे ईसाइयों पर किस प्रकार से हमला हुआ है। ईसाई और हिंदुओं की हालत बिल्कुल सेम है। जब पाकिस्तान बना था तब हजारों की संख्या में पाकिस्तान में हिंदू मंदिरें थी। अब लगभग 20 या 25 ही हिंदू मंदिर पूरे के पूरे पाकिस्तान में है, और पाकिस्तानियों में हिंदू की संख्या काफी तेजी से घट रही है, जो कि जब पाकिस्तान बना तब 3 से 4% के बीच में थी। आज वो संख्या महज 1% के नीचे आ चुकी है। पाकिस्तान में ईसाई, सिख और क्रिश्चियन होना काफी मुसीबत की बात है। पाकिस्तानी लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते हैं और उसमें कोई भी नहीं बच पाता।
हिंदू लड़कियों का तो अपहरण करती है, उसके साथ ही क्रिश्चियन की हालत वहाँ पे दलितों जैसी है। जिस प्रकार से वहाँ की लड़कियों को भगाया जाता है, 14-15 साल के बच्चियों को स्कूल से ही उठा लिया जाता है और महज 2 घंटे के अंदर उसका धर्म परिवर्तन करके 30-40 साल के आदमी के साथ उसकी शादी की जाती है। यही बात काफी कॉमन है और इसके ऊपर सरकार का पूरा सपोर्ट भी है। स्कूल में से बच्चे गायब हो जाना, घर में से किडनैप करके ले जाना और परिवार को डरा धमका कर बच्चों की शादी करवा देना और उनके ऊपर सरकार और पुलिस की तरफ से भी धमकियां, ये सारी बातें पाकिस्तान में काफी कॉमन है। और वहाँ के माइनॉरिटीज जो हिंदू है, जो ईसाई है, इससे काफी परेशान है। हमने कई बार देखा है कि वहाँ के चर्चेस को जलाया जाता है, वहाँ के चर्च में लोगों को मारते हैं और यहाँ तक कि कई बार वहाँ के पादरियों की भी हत्या की गई है। ये बात पाकिस्तान में काफी कॉमन है और वहाँ के पाकिस्तानी मुसलमानों को तो इसकी जरा भी परवाह नहीं है, ना ही उनके लिए कोई वहाँ पे आता है। चलो मान लेते हैं कि पाकिस्तान में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर भारत हमेशा आवाज उठाता है, पर ईसाइयों पर हो रहे अत्याचार पर ना कभी किसी क्रिश्चियन देश ने भी आवाज उठाया है। क्या वो पाकिस्तान को इतना डरते हैं या फिर एक क्रिश्चियन लोगों की कौन सी हिपोक्रेसी है कि जो सिर्फ कैथोलिक क्रिश्चियन को सपोर्ट करते हैं और जो लोग कन्वर्ट हो चुके क्रिश्चियन को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये तो क्रिश्चियन की भी दोगलापन हमें दिखाई पड़ता है। गरीब और कन्वर्टेड क्रिश्चियन के बारे में तो बड़े बड़े चर्च भी और बड़े बड़े देश भी नहीं सोचते हैं। पाकिस्तान में क्रिश्चियनों को अब जिंदा रहना काफी मुश्किल है। वहाँ पे हर एक के साथ कोई ना कोई वारदात तो हो चुकी है। वहाँ के स्कूलों पे अटैक होती है। जो क्रिश्चियन मिशनरी वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे स्कूल चलाते हैं, तो उनके ऊपर अटैक होता है। स्कूल बंद करने के लिए वहाँ पे धमकी दी जाती है क्योंकि वो बच्चों को स्कूल में फ्री में पढ़ाते हैं। यही उनका एक कारण है। मुसलमान देश में कोई धर्म पनपना काफी बुरी बात है और हम देखते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो एक समय पर हिंदुओं, जैनों और बुद्धों से भरा पड़ा था, आज वहाँ पर हिंदू, जैन और बौद्धों की संख्या 0 के बराबर है। सम्राट अशोक ने अफगानिस्तान तक हिंदू मंदिर, बौद्ध मंदिर बनाए थे, बौद्ध स्तूप बनाए थे, जिनकी संख्या आज लगभग नहीं है। ये सब के सब तोड़ दिए गए हैं। बामियान बुद्धा का एग्जाम्पल तो आपके सामने जरूर है। इसलिए पाकिस्तानी मुसलमान जो भी देश में जाते हैं, वहाँ पे वो कई सारा प्रॉब्लम खड़ा करते हैं। लोगों को कन्वर्ट करने की बात करते हैं, बीच चौराहों में नमाज पढ़ते हैं और जोर जोर से अजान बजाते हैं। इसके कारण यूरोप में वहाँ के रहने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है और अभी वहाँ पे फार राइट विंग वाले लोग भी सामने आए हैं। अभी इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने भी इस्लाम के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया था और 1 महीने पहले डेनमार्क में और नीदरलैंड में हो रहे इलेक्शन के बाद वहाँ पे राइट विंग वाले लोग सामने आकर इस्लाम को विरोध कर रहे हैं और इस्लामिक इमिग्रेंट्स को वहाँ से भगाने की बातें भी करते हैं और ये आवाज़ दिन ब दिन कड़ी होते जा रही है। सोशल मीडिया पे इस्लाम विरोधी और इस्लामोफोबिया के कई सारे वीडियो सामने आते हैं। मुसलमान देशों ने और मुसलमान सरकारों ने इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए कि सारे के सारे वेस्टर्न कंट्रीज अब इतनी सारी कंप्लेंट्स क्यों कर रही है, आखिर दोष किस में है। अगर राइट विंग वाले लोग ज्यादा बढ़ जाते हैं तो क्या यूरोप से मुसलमानों को भगा दिया जाता है? ये तो आने वाला समय ही बताएगा।